लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कुनबे में भारी इजाफा होता जा रहा है। 500 से ज्यादा सिख शख्सियतों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 7 सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सभी बीजेपी में शामिल हुए। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 7 सदस्य जसमेन सिंह नोनी, परमिंदर सिंह लकी, भूपेंद्र सिंह गिन्नी, रमनदीप सिंह थापर, रामनजोत सिंह मीता, हरजीत सिंह पप्पा, मंजीत सिंह औलख बीजेपी में शामिल हुए। ये सभी पहले शिरोमणि अकाली दल बादल की दिल्ली इकाई को छोड़कर शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट में शामिल हुए थे। अब सभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। नहीं, अच्छी गल आ। देखो, एक गल आपां जरूर कवांगे, दिल्ली दे सिखां को विकल्प किया। एक पासे कांग्रेस दा कानूना चेहरा है, खूनी पंजा है कांग्रेस दा। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾलों ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। एक पासे कांग्रेस आ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਛੰਨੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੈਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੀ ਉਤਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਬਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਬਰਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। लेकिन सिरसा जी, जिस तरीके से अभी तक आरोप लगता था कि बीजेपी दूसरे अंदर खाते सिख संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली कमेटी के मेंबर बीजेपी में शामिल हुए, अब तो आरोप लगेगा कि बिल्कुल सीधे कब्जा करना चाहती है बीजेपी। देखिए, क्या इन लोगों को और मेरे को, हम सबको अधिकार नहीं है? हम अपने चुनावी जो हमारा है इलेक्शन के लिए जो पार्टी है वो बीजेपी है। जो गुरुद्वारा कमेटी के अंदर है वो तो गुरुद्वारा कमेटी की सेवा करता है, उससे बीजेपी का क्या मतलब है? देश ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लगता नहीं पापा जी, जिस तरीके से धार्मिक पॉलिटिक्स और राजनीतिक पॉलिटिक्स अलग रखनी चाहिए? नहीं, देखिए, हर आदमी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्या लगता है कि अब सवाल खड़े होंगे कि दिल्ली कमेटी पर बीजेपी का? देखो, सवाल चुकन वाले ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿੰਤੂ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੇਵਲ ਕਿੰਤੂ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ है। आरोप लगते थे कि दिल्ली कमेटी पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अब तो आप बीजेपी में खुद शामिल हो गए हो, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो अच्छा काम करे उसकी अगर हम वाहवाही करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे लेकिन उन्होंने सिखों के लिए कुछ काम किया नहीं। लेकिन मोदी जी के जो अनगिनत काम आप
हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और अभी हम सुन के भी आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ कैसे साहिबजादों को उनके नाम पर राष्ट्रीय दिवस मनाना, कैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी के दिन लाल किले से मनाना जहां से कभी उनको शहीद करने के फरमान जारी हों, कैसे करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलना जो हम रोज अरदास में सारे सिख, ऐसे अनेकों काम, अब हेमकुंड साहब खुलना, रोपवे खुलने जा रहे हैं, वहाँ पे सिख श्रद्धालु अच्छे से जो संतों के गुरु साहब के दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसे जो अच्छे अच्छे कार्य हैं, आप इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते, बजाय इसके कि बीजेपी का हम सबने से ज्वाइन की उस पर किंतु परंतु करने। मैं वजह नहीं मानता, मैं इसकी अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन क्यों की है, कोई वजह है? मतलब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुझे लगता है ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं बीजेपी ज्वाइन ना कर सकूं। इतनी सारी वजह हैं कि बताने में भी आधा पौना घंटा लग जाएगा, पर आपको मैं छोटी छोटी बातें जल्दी बता देता हूं। जैसे बात करें कॉरिडोर की 2019 में, बात करें अफगानिस्तान सिखों की, बात करें गुरु ग्रंथ साहब को लेके आने की, बात करें 84 के कातलों को जेल में डालने की, बात करें हमारे छोटे साहिबजादों की याद की बनाने की, उनको इतिहास में लाने की, और वो इतिहास जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में रहता था, आज वो हर बच्चे के किताब में है इतिहास वो। और वो कुछ ही टाइम के बाद हर बच्चे के ज़ुबान पे होगा कि छोटे साहिबजादे कौन थे, क्या उनका कुर्बानी थी और उनके परिवार की क्या कुर्बानी। लेकिन अब ये नहीं लगेगा कि सीधे सीधे आरोप लगेंगे कि बीजेपी सिख संस्थानों पर कब्जा करना चाह रही है? तो मुझे लगता है कि जैसे कोई बड़े ओहदे पे हो, सरकारी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई गुरुद्वारे आके झाड़ू लगा ले, लंगर बना ले, सेवा कर ले, तो इसमें मुझे लगता है मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ, मैं तनख्वाह तो कोई लेता नहीं हूँ। मैनेजमेंट में तो आप बैठे हो ना? हम मैनेजमेंट मेरी सेवा है ना, वो सेवा को हम राजनीति से नहीं जोड़ सकते। सेवा कोई भी कर सकता है, मैं सेवा कर रहा हूँ, पर सेवा का और प्रोसीजर ये है कि इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और मैं उस इलेक्शन के प्रोसेस से निकला हुआ हूँ। अब मुझे राजनीति करनी है तो मैं राजनीति में आ रहा हूँ। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।